Dear students, Assalamu alaikum. My today's lesson is again for ninth class English, and same lesson we started yesterday. How a client was saved, written by Mohandas Karamchand Gandhi. Yesterday I gave you an introduction of this lesson. Then I made a model reading of some paragraphs, and afterwards I gave you the meanings of some important and difficult words. Since it's a virtual classroom, so it's not possible to complete this lesson by reading every para and then giving the meaning of every para and then doing the exercise, etc. So let's try to do it in a stipulated time. So today I will give you a brief summary of this lesson. Gandhiji describes an incident related to one of his friends and co-workers, namely Rustomji. He was a large importer of goods from Bombay and Calcutta. Many a times he indulged in smuggling also, but he never talked of this to Gandhiji. ही कंसील्ड सम थिंग्स के उसने गांधी जी से कुछ चीज़ें छुपाई थी। हालांकि गांधी जी को उस पर पूरा भरोसा था, उन दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट था एक दूसरे में, लेकिन डेलिबरेटली उसने ये चीज़ छुपाई थी। तो वो स्मगलिंग करता था और गुड्स की तस्करी करता था इधर, तो ये चीज़, बट ही नेवर टॉक्ड ऑफ दिस टू गांधी जी. The customs officials never suspected him because he was on the best terms with him. But one day his guilt was found. Now he was in a big trouble. He was sure to be sent to jail. हालांकि जो ये थे ये कस्टम्स ऑफिसर, वो उनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे और गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है उनके पास उसका कुछ नेक्सस भी हो, वो पैसों के एवज उसकी चीज़ें छोड़ते हैं, लेकिन एक दिन तो उसकी चोरी पकड़ी गई रुस्तम जी की और वो यकीनन वो जेल उसको जेल जाना था. तो ऐसे में रुस्तम जी केम रनिंग टू गांधी जी विद टीयर्स इन हिज आईज. ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैड बीन स्मगलिंग बट वांटेड गांधी जी टू सेव हिम फ्रॉम बीइंग सेंट टू जेल. तो अब उसके पास कोई चारा नहीं रहा. वो किसके पास आया? जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसके पास कोई चारा नहीं रहा. वो दौड़ते दौड़ते he came to Gandhiji and told him the whole story. Gandhiji told Rustomji he would have to make a confession of his guilt to the government. He was not in favor of taking the case to court. He said it rests with the customs officer to prosecute you or to let you go, and he in turn will have to be guided by the Attorney General. I am prepared to meet both. I propose that you should offer to pay the penalty they fix, but if they don't, you must be prepared to go to jail. The deed of shame has already been done. Imprisonment you should regard as penance. The real penance lies in resolving never to smuggle again. गांधी जी का जो ख्याल था, गांधी जी को इस बात में जो नज़र आया कि ये मसला हल कैसे होगा, तो उसने उसने बेहतर समझा कि ये कोर्ट में जाने के बजाय अगर कस्टम्स ऑफिशियल्स के साथ ही इसके बारे में बात की जाए और वो कुछ पेनल्टी तय करें, या फिर रुस्तम जी को उन्होंने कहा कि अगर वो पेनल्टी तय नहीं करते, आपके लिए कोई सेंटेंस कोई सज़ा ये करते हैं, प्रपोज करते हैं, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर गोइंग जेल. दिस विल बी, क्योंकि गांधी जी ने उसको कहा कि जुर्म करना बहुत बुरी बात है, तो जुर्म के लिए फिर जेल जाना वो उतना बुरा नहीं है, उतनी शर्मिंदगी का बायस नहीं है. बट इट सेल्फ कमिटिंग ए क्राइम इज़ वेरी 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 शेमफुल. और उसके बाद उसने रुस्तम जी से कहा कि अब के बाद आपको ये रिजॉल्व करना चाहिए, ये तय करना चाहिए, अपने आप के साथ वादा करना चाहिए कि अगली बार तुम इन ऐसी चीज़ों में नहीं ऐसी क्राइम्स कमिट नहीं करोगे. रुस्तम जी took all this quite well. He was a brave man. He felt himself entirely in Gandhiji's hands. Now Gandhiji met the customs officer and explained to him the whole affair. He also promised to place all the books before him and told him to how to penitent Rustomji was feeling. The customs officer agreed not to take the case to court. Gandhiji was able to convince the Attorney General also. At last, the case was settled by compromise. Rustomji was asked to pay a penalty equal to twice the amount he had confessed to having smuggled. Rustomji wrote down the facts of the whole case, got the paper framed, and hung it in his office to serve as constant reminder to
his heirs and fellow merchants. यानी तो गांधी जी ने अपने इस दोस्त की, अपने इस कोवर्कर की मदद तो की, तो लेकिन रुस्तम जी को भी बड़ा पछतावा हुआ. He made a repentance. He felt sorry and he resolved not to do smuggling and other crime in his life again. And afterwards, he wrote the whole story of this case, whole in a paper and framed it. And उसने वो पेपर पूरा पेपर पर लिखा इसके ये वाक़ात क्या क्या इसके साथ हुआ. तो उसने ऑफिस में वो उसको लटका दिया ताकि वो उसको हर वक्त याद दिलाता कि क्राइम करना और फिर क्राइम छुपाना कितनी बुरी बात है. सो ये इस लेसन की समरी है. अब अगर हम देखेंगे कि इसके बाद में कुछ मतलब कुछ ये हैं वर्ड्स हैं, ग्लॉसरी इसकी है. क्लाइंट, मैंने कहा एक वकील का जो होता है, जिसका केस, किसी इंसान का केस, किसी फर्द का केस वकील के पास हो, तो इंसान को जिसका केस होगा तो वो उसका क्लाइंट. जैसे एक दुकानदार का कस्टमर होता है वैसे ही उसका ये. क्वेक, person who pretends to have knowledge especially of, pretend करता, pretend means धोखे से, यानी दिखाता है, हालांकि होता नहीं अंदर से, मगर वो एक्चुअली नहीं होता है. pretend हम कहते हैं जो इंसान न हो और वो दिखाए. कोई डाकू dacoit pretends to be a nobleman but actually he is not, he is just pretending. और इसी तरह जो क्वेक्स होते हैं वो प्रेटेंड करते हैं कि हम कोई, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती है. स्क्रेप, मैंने आपको कल बता दिया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ट्रबल. स्टडियसली, डेलिबरेटली कोई चीज़ डिलीवर करना, उसने स्टडियसली वो चीज़ छुपाई थी. रिजॉर्ट, मेक यूज़ ऑफ. स्मगल, गेट गुड्स सीक्रेटली इनटू और आउट ऑफ कंट्री, यानी गैर कानूनी तौर से चीज़ें मुल्क में लाना या मुल्क से बाहर भेजना. गैर कानूनी तौर, उसको कानूनी तौर पर तो आती हैं चीज़ें, लेकिन गैर कानूनी तौर पर अगर कोई चीज़ की जाए, मुल्क में लाया जाए और मुल्क से बाहर भेजा जाए, तो उसको हम स्मगलिंग कहते हैं. और स्मगलिंग इज़ ए ऑफेंस, वेरी बिग ऑफेंस, पनिशेबल, और उसमें वो बहुत सज़ा होती है. इसी तरह कस्टम्स, टैक्सेस ड्यू टू गवर्नमेंट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड, जो कस्टम ड्यूटी लगती है, जो बाहर से चीज़ें आती हैं उन पर एक टैक्स लगता है मुल्क में आने के बाद, तो उसको हम कस्टम कहते हैं. और जो लोग इसके साथ वाबस्ता होते हैं वो कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं. ड्यूटी आपको पता है कि क्या होती है. ड्यूटी, एक तो ड्यूटी होता है कि किसी की ड्यूटी या कोई फ़र्ज, और दूसरा होता है ये एक किस्म का टैक्स, पेमेंट डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्टन गुड्स एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, उन पर ड्यूटी लगती है. एक्साइज ये लगता है, कुछ और टैक्स, उसको हम ड्यूटी कहते हैं. इनवॉइस, लिस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विथ प्राइसेस चार्जेड, उसमें लिस्ट ऑफ गुड्स होती है. किसी को कोई चीज़, किसी दुकानदार को चीज़ें बेचनी होती हैं, एक बड़े व्यापारी को, तो वो उसमें एक इनवाइस डालता है कि इतनी चीज़ें और इनकी प्राइस है, वो इनवाइस होती है. इसी तरह से है टेलिंग, वेरी इफेक्टिव, इम्प्रेसिव, यानी बहुत मुतासिर कुन, टेलिंग एडवाइस या टेलिंग कोई चीज़. क्विक सिल्वर, मैंने कल कहा आपको, मर्करी, फोस्टेस, इन ए ग्रेट हेस्ट, जल्दबाजी में. इसी तरह डोम्ड, सर्टेन टू बी, यानी डोम्ड हम कहेंगे कि आई एम कॉट, जैसे कि रुस्तम जी, आई एम कॉट एंड आई एम डोम्ड, आई एम सर्टेन टू बी रूइंड, यानी मेरी तबाही अब यकीनी बन चुकी है. प्रिडिकामेंट, यानी मुसीबत में होना, डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन में होना. इसी तरह है कॉन्फेशन, एक्नॉलेज. कॉन्फेशन कल मैंने आपको बता दिया, जब कोई इंसान अपना जुर्म कबूल करता है, दैट आई हैव डन दिस, जैसे रुस्तम जी ने कहा कि आई हैव कमिटेड स्मगलिंग, तो उसका मतलब उसने एक वाले जुर्म किया. मोटिफाई, वॉन्ड ऑफ फीलिंग हर्ट, मोटिफाई मीन शर्मिंदा होना, ऑकवर्ड पोजीशन होना. रॉन्ग टू डू इनजस्टिस, यानी किसी के साथ गलत करना. अवेल ऑफ यूज़ और प्रॉफिट, अवेल यहाँ पे अवेल हम नॉर्मली करते हैं कि अवेल ए सिचुएशन, मैं इस मौके को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ दूसरी सेंस में अवेल को यूज़ किया गया है ऑफ यूज़ और प्रॉफिट टू समवन, यानी ये बहुत फ़ायदेमंद या मुनाफा की चीज़ है. काउंसिल, काउंसिल मीन्स एडवोकेट और बैरिस्टर गिविंग एडवाइस इन लॉ केसेज, यानी कानूनी माहिर जिसे हम कहते हैं. ऑफेंस, ब्रेकिंग ऑफ ए रूल, जुर्म. इन्वॉल्व, किसी चीज़ में के साथ वाबस्ता होना, टू बी रिलेट और कंसर्न विद. ट्रिफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट, गैर मामूली, एक ट्रिफलिंग सम पर उनका ये पकड़ा गया था. पर यूज़ कहते हैं जब कोई फाइल किसी ऑफिसर के पास जाती है तो उसको वो गौर से अगर पढ़ता है तो हम कहते हैं कि ऑफिसर हैज़ पर यूज द फाइल, उसने गौर से वो फाइल पढ़ी है. जूरी हम कहते हैं जब एक से दो ज़्यादा जज हो, कोई फैसला, कोई केस सुनते हो एक से ज़्यादा जज, तो उसको हम जूरी कहते हैं.
एक्विट मीन्स किसी के बारे हक में फैसला देना, किसी मुजरिम के या किसी जिसका केस हो उसके हक में फैसला देना, और वो कानूनी तौर वो उस केस से बरी हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका एक्विटल हो गया, ये एक्विट हो गया। इंटीमेट मीन्स क्लोज, ये हम कहते हैं ना इंटीमेट, ही इज़ माई इंटीमेट फ्रेंड, मेरा दोस्त है नज़दीकी। इंटरसेप्ट हम कहते हैं कि द पुलिस इंटरसेप्टेड ए व्हीकल कैरिंग टिम्बर, पुलिस ने एक गाड़ी को रोक दिया जिसमें कि लकड़ी जा रही थी। तो इंटरसेप्ट मीन्स रोकना, आगे जाने से रोकना। इसी तरह शेल्व यहाँ पे है पोस्टपोन करना, कोई चीज़ मतलब टालना। प्रोसिक्यूट मीन्स स्टार्ट ए लीगल, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना। odds, the chances in favor of against something happening, कोई मतलब वक्त किसी के हक में होता है या किसी के खिलाफ होता है। इसी तरह पेनेंस, पनिशमेंट ऑफ सिंस विलिंगली एक्सेप्ट, यानी जो कोई खुद करता है कि नहीं मैंने ये जुर्म किया, मैं इसके लिए तैयार हूँ इसकी सज़ा भुगतने के लिए, तो वी कॉल दैट पेनेंस। एडिफिस, समथिंग बिल्ड अप, एडिफिस मीन्स जो हम कोई बड़ी इमारत बनाता है, कोई बड़ा जागीर बनाता है, तो उसको कहते हैं, या बिजनेस बना या रेपुटेशन बनाए तो उसको कहते हैं एडिफिस। रियर भी दो तरह की, एक हम कहते हैं रियर विंडो, गाड़ी का पिछले वाला से, नहीं, यहाँ रियर जो है, रियर मीन्स यहाँ कायम करना, सेटअप, बनाना, कोई चीज़ बनाना। इसी तरह से यहाँ पे परसुएशन है, पावर ऑफ एक्टिंग करने, यानी हम किसी को परसुएड करते हैं, परसुएशन के कोई बात मनाने के लिए हम कहते हैं आई एम परसुएडिंग हिम टू कम टू माई होम और टू डू समथिंग। इसी तरह अप्राइज, इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी के बारे में जानकारी देना। पेनिटेंट मीन्स रिपेंटेंट, यानी जो पछतावा जिसे हम कहते हैं, पछताने वाला। ड्रैग, खींचना, पुल अलोंग। एक्सटॉर्ट, ऑब्टेन बाय फोर्स, हम कहते हैं ना एक्सटॉर्शन, कि चोर ने एक्सटॉर्ट किया, ज़बरदस्ती से किसी पैसे छीनना। इसी तरह दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़, सेटल, जब दो लोगों के बीच किसी बात पर सलाह हो जाती है, कोई ये होता है फैसला आपस में, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। इसी तरह है परपेचुअल, नेवर एंडिंग, परमानेंट, यानी जो चीज़ ख़त्म ना हो, दिस इज़ ए परपेचुअल डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, यानी जो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। हियर, HEIR, हियर तो आपको पता है बहुत सारे ये है मीनिंग, तो ये इस हियर का मीनिंग है पर्सन विद अ लीगल राइट, जिसको हम वारिस कहते हैं, लीगल राइट टू रिसीव प्रॉपर्टी। और लास्ट का जो है वर्ड दैट इज़ कॉन्ट्रिशन, उसका मतलब है रिपेंटेंस, पछतावा। और उसके बाद इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे।